Hello everyone, this is Disha. Welcome back to the channel Medical Disha. In this video, I will be sharing a few important formulas of dual nature of matter and radiation. First formula is work function. Work function phi naught is given by h nu naught. Here nu naught is the minimum threshold frequency, means minimum frequency which is required for photoelectric effect, and work function is the energy required to eject the electron from the metal. Phi naught is equal to h nu naught is equal to hc by lambda naught. Second, kinetic energy of emitted photoelectron K max is equal to half m V max square is equal to EV naught. It is given by h nu minus phi naught, means total energy minus work function is kinetic energy. Energy of photon E is equal to h nu is equal to hc by lambda. Momentum होगा h nu by c और h by lambda. Equivalent mass of photon m is equal to E by c square is equal to h nu by c square or h by c lambda. De Broglie wavelength lambda is given by h upon mv. mv is momentum, so lambda is equal to h by p, और momentum को हम लिख सकते हैं under root 2m ke. So lambda is equal to h upon under root 2m ke. काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं qv, तो लैम्डा का एक और फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m qv. काइनेटिक एनर्जी को 3/2 kT भी लिख सकते हैं, तो लैम्डा हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 3m kT. एंड फॉर इलेक्ट्रॉन व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ h m q वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम. Number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to intensity of incident radiation. यानी जो photoelectric current है वो intensity of radiation पे depend करता है, frequency पे depend नहीं करता. When we plot a graph of photoelectric current and potential, then अगर 3 लाइट्स यूज की है हमने, सेम इंटेंसिटी की है तो सैचुरेटेड करंट सेम होगा, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की है तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल required to stop the fastest electron. It is directly proportional to frequency, means maximum kinetic energy of photoelectron frequency पे depend करती है, intensity पे depend नहीं करती. मान लो हमने 3 लाइट्स ली हैं of same frequency but different intensity, तो क्योंकि intensity different है तो सबके saturation currents different होंगे, बट क्योंकि वो तीनों सेम फ्रीक्वेंसी की है तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा. Stopping potential is directly proportional to frequency. This is the graph of it. Kinetic energy maximum is also directly proportional to frequency. Photoelectric current का frequency के साथ कोई रिलेशन नहीं है, that's why the graph is straight. और stopping potential का intensity के साथ कोई रिलेशन नहीं है. Now we will discuss the important formulas of atoms and nuclei. Very first topic is Rutherford's alpha ray scattering experiment. It is also known as Ziegler-Madsen experiment. In this experiment, alpha particles were bombarded on the gold foil. So the force between alpha particle and gold nucleus will be 1 by 4 pi epsilon naught Ze 2e by r square. Ze is the total charge of gold nucleus. 2e will be the charge of alpha particle. So force is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. q1 की जगह Ze, q2 की जगह 2e. So this is the formula of force. और इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस ये थी दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट, सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, 1 in every 8000 अल्फा पार्टिकल रिबाउंड्स बैक.
मतलब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और स्कैटरिंग एंगल के बीच में इनवर्स का रिलेशन है. n is directly proportional to 1 upon sin 4 theta by 2. Next is distance of closest approach. It is the distance of alpha particle from the gold nucleus when kinetic energy becomes equal to potential energy. So 1 half mv square, kinetic energy is 1 by 2 mv square is equal to potential energy, that is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r. q1 की जगह ze, q2 की जगह 2e. And from here we can find the distance of closest approach r0. It will be ze 2e upon 4 pi epsilon naught half mv square. Impact parameter. It is the perpendicular distance of the initial velocity vector of alpha particle from the central line of nucleus when the particle is far away from the nucleus of the atom. और इसका फॉर्मूला होगा B is equal to 1 by 4 pi epsilon naught ze square cot theta by 2 upon kinetic energy. और kinetic energy की जगह हम half mv square भी लिख सकते हैं. So this will be the formula of impact parameter. Next is Bohr's model of atom. Bohr's model of atom में रेडियस, सबसे पहले बोहर ऑर्बिट की रेडियस r is equal to n square h square upon 4 pi square m k e square. r is directly proportional to n square. नेक्स्ट है वेलोसिटी का फॉर्मूला. वेलोसिटी विल बी 2 pi k e square upon nh. v और n का इनवर्स रिलेशन है. न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी होगी के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच आर. न्यू और एन का इनवर्स रिलेशन है. टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर. हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर. दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला ये है. और एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें और सभी कांस्टेंट्स की वैल्यूज पुट करें तो एनर्जी हो जाएगी माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. When n is equal to 1 तो E होएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिमिलरली n की वैल्यू 3 तो माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. n की वैल्यू 4 तो E हो जाएगा माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और n की पावर 5 तो E हो जाएगा माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट इज रेडबर्ग्स फॉर्मूला. जब भी हाइड्रोजन एटम में कोई भी ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर तो एक रेडिएशन एमिट होती है. उस रेडिएशन की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर हम रेडबर्ग्स फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं. 1 by lambda is equal to wave number is equal to r 1 by n1 square minus 1 by n2 square into z square. जब n1 की वैल्यू 1 है और ट्रांजिशन 2, 3 या 4 से हो रही है तो लाइमैन सीरीज होगी. जब n1 की वैल्यू 2 है तो बाल्मर, 3 है तो पाश्चन, 4 है तो ब्रैकेट और 5 है तो पीफंड. ये हम केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी सेम स्पेक्ट्रल सीरीज करते हैं. नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ये भी बोहर का ही पोस्टुलेट है. इट स्टेट्स दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. मीन्स mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. और 2 पाई को हम इधर ले जाते हैं, my को नीचे ले आएंगे. सो 2 पाई r विल बी इक्वल टू nh अपॉन mv. 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा. Circumference is integral multiple of de Broglie wavelength. फिर न्यूक्लियाई वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है. इसमें सबसे पहले न्यूक्लियर साइज और न्यूक्लियर रेडियस. न्यूक्लियर रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास. r इज इक्वल टू आर नॉट a की पावर 1/3 और r नॉट होगा 1 फर्मी के इक्वल.
1.1 into 10 power 15 meter. Nuclear density, that is mass of nucleus upon volume of nucleus, is constant for all elements. It is given by 3m upon 4 pi r0 square. Energy is equal to mc square. 1 AMU, that is 1/12 the mass of carbon 12, is 1.66 into 10 power minus 27 kg. हम ये मास की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करेंगे. C की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8, तो ये आंसर आएगा. इसको हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे. फिर आएगा 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब एक AMU जितने मास में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी है. नेक्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस. एनर्जी with which न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड. अगर हम एक न्यूक्लियस के सभी न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाएं तो कितना काम करना पड़ेगा, उसे बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं. मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट होता है जब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फ्री हैं तो उनका एक पर्टिकुलर मास होगा, पर जब वो न्यूक्लियस बना देते हैं तो मास कम हो जाता है. That is called mass defect. Difference between sum of masses of nucleons and mass of the nucleus is called mass defect. ये mass defect इसलिए arise करता है क्योंकि कुछ मास बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. मास ऑफ प्रोटॉन्स हो गया ZMP. Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन. ये मास ऑफ प्रोटॉन्स. मास ऑफ न्यूट्रॉन्स होएगा A माइनस Z इंटू MN. A माइनस Z होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स जब वो फ्री स्टेट में है तब होगा वो ZMP प्लस A माइनस Z MN. मास डिफेक्ट क्या होगा, जब हम ये टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स से मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस कर देंगे, दैट विल बी मास डिफेक्ट. और जब हम मास डिफेक्ट को C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी आएगी. एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विल बी बाइंडिंग एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. इसके बाद एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व आता है जिसको आप अपनी बुक्स से रिवाइज कर लेना, मैंने वो यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है. नेक्स्ट इज टॉपिक ऑफ रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी रेट इज इक्वल टू माइनस dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा n. लैम्डा यहाँ पे डिके कांस्टेंट है और n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा t. ये एक डेरिवेशन से फॉर्मूला डिराइव होता है. जब हम t की वैल्यू 1 बाई लैम्डा पुट करेंगे तो हो जाएगा n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू n0 बाई e. सो disintegration constant is reciprocal of time at which number of atoms left undecayed reduces to 1 by E times the N0. Next is half-life period, means the time period during which number of elements get reduced to half. T half is equal to 0.693 by lambda. Average life period, torque, is reciprocal of decay constant. Torque is equal to T half upon 0.693.